بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پھر بھی آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اور یہ اکیلا میرے شاگردوں کے لیے نہیں ہے، پورے عوام کے لیے ہے جو شوق رکھتا ہے حکمت کے ساتھ۔ اور میری چاہت یہ ہے کہ میں جب دوائی دیتا ہوں تو میری چاہت یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھ میں شفا رکھے اور بڑے بڑے تکالیف سے اللہ ہر انسان کو بچائے، اور اس بچانے میں ہماری پوری ہمت ہو اور ہمارا حصہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہر کسی کو سکھانا چاہتا ہوں۔ شوق کی بات ہے، کسی کا شوق ہے تو وہ سیکھیں گے، اگر کسی کا شوق نہیں ہے تو اس کو اگر فائدہ مل جائے تو ہمارے لیے عبادت کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ دوستو، آج یہ آپ کو پورا نظر آ رہا ہے، یہ ایک چارٹ میں نے بنا دیا ہے، اور اس چارٹ میں پورا نظر مفرد اعضاء کا اور طب یونانی کا پورا میں نے وہ ایک ٹیبل بنا دیا ہے، اور ٹیبل میں اگر اس سے عام آدمی استفادہ لینا چاہے تو وہ استفادہ لے سکتا ہے، اور ہمارے شاگرد جس کو میں پڑھاتا ہوں وہ تو انشاءاللہ ضرور اس سے استفادہ ہوں گے، مستفید ہوں گے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امور طبیعہ جو 6 ہے: مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال۔ تو اسی میں یہ ہمارا طب کا بنیادی، یعنی جو عمارت ہے اس کا بنیادی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے امور طبیعہ۔ تو اس میں مدارج مرض، جب مرض داخل ہو جاتا ہے تو مزاج جب لذت شروع ہو گئی، مثلا یہ ہے کہ کسی چیز کا خواہش، زیادہ پینا، زیادہ سونا، اسی طرح زیادہ جاگنا، اسی طرح زیادہ دوڑنا، یہ لذت میں ہے تو یہاں مزاج متاثر ہوگا۔ اور اسی طرح زیادہ کھانے کے خواہش ختم ہو جائے، قبض پیدا ہو جائے، بھئی کسی چیز کو میں ابھی سو نہیں سکتا ہوں، اس سے الرجی پیدا ہو جائے، مطلب یہ جو زیادہ مقدار میں وہ استعمال کرتے تھے اس سے وہ متنفر ہو گئے، خوف پیدا ہو گئی، تو یہ اخلاق میں فرق آتا ہے۔ اور یہاں جب قبض پیدا ہو گیا، قبض کا مطلب یہ ہے کہ کسی راستے سے کسی چیز کا نکلنا وہ بند ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ پاخانے میں فرق آ جائے، پیشاب میں فرق آ جائے، اس کو قبض کہتے ہیں، تو یہ اعضاء میں فرق آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سوزش ہے، تو سوزش جو ہے نا، سوزش یہاں ارواح کو متاثر کر دیتے ہیں، اور پھر اس سوزش کے بعد ورم پیدا ہو جاتا ہے جو قوا کو متاثر کرتا ہے، جو قوت ہے، اور جب قوت کو متاثر کر دیتا ہے تو پھر افعال کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہو، مطلب یہ کہ یہ سارے باتیں ایک دم پیدا نہیں ہوتے ہیں، پہلے ابتدا سے شروع ہو جاتے ہیں، قبض، پھر قبض، پھر سوزش، پھر ورم، الجھے۔ تو یہاں پر ہمیں یہاں لذت اور قبض، یہ دونوں تحریک کے امراض ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ تحریک کے امراض ہیں۔ تو تحریک کے امراض میں نے یہاں لکھا ہے کہ تحریک کی علامات کیا ہے۔ اس میں لذت بھی آتا ہے، قبض بھی آتا ہے، قبض بھی آتا ہے۔ قبض اس میں ابتدائی تحریک کا ہے اور تسکین کا، انتہائی تحریک کا انتہا ہے اور تسکین کا ابتدا شروع ہو گئی، کیونکہ یہاں قبض شروع ہو جاتا ہے۔ جوش خون، بلڈ پریشر، جس کو بلڈ پریشر کہتا ہے، رطوبات کا گرنا، مثلا کسی جگہ سے رطوبات گرنا، چاہے وہ زکام سے ہو، چاہے جریان کے راستے سے ہو، جلن، کسی چیز کا جلنا، کسی چیز کا جلنا، اور کہیں پر جلن محسوس ہوتا ہے تو وہ اسی تحریک کی علامات ہے۔ گرمی محسوس ہونا، سرخی، درد، اکڑاؤ، پٹنا اور سکڑنا۔ یہ پٹنا جو ہے نا، یہ آخری سٹیج ہے اس کا۔ اسی طرح میں نے اس میں مطلب قبض اور سوزش لکھا ہے، تو قبض سے سوزش تک یہاں بوجھل اعضاء، باہری محسوس ہونا، بوجھل اعضاء مطلب کسی کا قبض ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کو جسم بوجھل محسوس ہوتا ہے، تو یہ تسکین میں داخل ہو جاتا ہے۔ بھاری محسوس ہونا، کسی جگہ مطلب کسی عضو کا بھاری محسوس ہونا، درد نہ ہونا، اس میں درد نہیں ہوتا ہے۔ سستی اعضاء، خارش،
सुन जाना ऊपर में भी होता है, नीचे में होता है। ऊपर में भी यहाँ ये तहलील में सुन जाना है और तस्कीन में भी सुन जाना है। इसी तरह ज़हर यहाँ पैदा हो जाते हैं, क्योंकि तस्कीन के मकाम पर फाजिल रतूबात जमा पैदा हो जाता है। जब जमा होना शुरू हो जाता है वहाँ, तो वहाँ पर ज़हर शुरू हो जाता है। उस ज़हर से आप कैंसर ले लो या और कोई मतलब ये कि जरासीम ले लो, ये यहाँ पर पैदा हो जाता है, तस्कीन के मुकाम पर पैदा हो जाता है। इस तरह किसी चीज़ का ढीला होना, तो ये इसी में पैदा हो जाता है। मोटापा, जब बंदा मोटा हो तो तस्कीन से मोटा हो जाता है। और मोटा जिस्म और रसना, आखिर में क्या होता है, आखिरी स्टेज क्या है, रसना, वो रसता है, एक चीज़ उससे बहता है फिर। और तहलील अमराज में कमज़ोरी अफ़आल, जैसे कमज़ोरी है, कम होना, किसी चीज़ का कम होना, जैसे कि नमक के डली आप पानी में रखे तो वो तहलील होकर कम हो जाता है। इसी तरह लटकना, मतलब किसी चीज़ का लटकना, आप बूढ़े लोगों को देखते होंगे कि यहाँ ये बाजू का ये यहाँ जगह नहीं है, या पैर का यहाँ जगह ये लटकता है, हालांकि वो उसके पास गोश्त भी है, उसके साथ मतलब ये गोश्त भी है, खून भी है, लेकिन वो लटकता है। इसलिए तो इसी तरह लटकना इसको कहते हैं। इसी में भी दर्द नहीं होते हैं, ये खाली महसूस होगा, ये भी बोझल महसूस होगा। तो ये अफ़आल, मतलब ये है कि अफ़आल में कमी ये भी है, अफ़आल में कमी ये भी है, अफ़आल में कमी ये भी है। ये अफ़आल में दर्द और ये चीज़ें पैदा कर देते हैं। ये तस्कीन और बोझल और बारिश महसूस होना ये पैदा कर देते हैं। तहलील अमराज में अफ़आल को कम हो जाना, कमज़ोरी हो जाना। तो यहाँ ये तहरीकी अमराज है, तो लिज़्ज़त से लेकर खब्ज़ तक तहरीकी अलामात ये है। और कब्ज़ से सोज़श तक तस्कीनी अमराज मैंने यहाँ से लेकर बोझल आज़ा से लेकर मोटापा जिस्म और रसना। और तहलीली अमराज में कवा और अफ़आल में फ़र्क जब आ जाता है तो तहलीली अमराज शुरू हो जाता है। तहलीली अमराज में वरम से लेकर कमज़ोरी अफ़आल ये तकरीबन यहाँ फालिश तक ये महसूस होगा। तो मैंने यहाँ ये जो टेबल बना दिया है, ये टेबल यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक अलामात है, और यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक अलामात है, और यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक अलामात है। अभी इसका पहचान क्या होगा, इसमें पहचान आपको अलामत से भी मतलब ये मालूम कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब लिज़्ज़त और खब्ज़ हो और ये दर्जे हो, ये दर्जे हो, तो इसमें नब्ज़ कवी हो, दोनों कवी होगा। अगर ये अलामत हो, कब्ज़ और सोज़श, इसमें नब्ज़ तेज़ होगा, तो ये अलामत होंगे ये। और अगर वरम और ज़ुइफ़ हो तो फिर ये अलामत होंगे, और नब्ज़ क्या होगा, नब्ज़ ज़ुइफ़ होगा। यह हमारा बुनियादी कंसेप्ट है, यानी एक बुनियाद है, जिनको हम समझे तो समझो कि हम हकीम बन गए। या आम आदमी भी सीख सकता है, शागिर्द भी सीख सकता है, और जो सीखने वाला शौक रखता है तो वो भी सीख सकता है। तो इसी तरह अखलाक है, आम अलामत सेहत वाला नवल। जब कोई बीमार हो जाता है तो वो यहाँ पर खाम बलगम है तो उसका जायका मीठा है, और इसी तरह पुख्ता बलगम है वो फीका है, खाम सोदा है वो तुरश है, पुख्ता सोदा है वो तलख है, खाम सुफरा है चरपरा है, पुख्ता सुफरा नमकीन है। इसी तरह उम्र है, तो ये खाम बलगम जो है ना, दूध जो बच्चा पीता है 1 साल से 2 साल तक, वो बच्चा, इसका मिजाज जो है ना वो आसाबी बुद्धि है, 6 नंबर मीठा बलगम। और जब खाना खाना शुरू कर देता है तो पुख्ता बलगम का वो सेहत बन जाता है। और इसी तरह बूढ़ा मर्द औरत, इसमें खाम सोदा होता है जो खुश सर्द है। और इसी तरह पुख्ता सोदा जो नौजवानों में होता है, नौजवान मर्द में, वो पुख्ता सोदा वो तलख, उसका जायका तलख होता है, और मिजाज उसका खुश गर्म है, उजलाती बुद्धि है। इसी तरह नौजवान औरत में खाम सफरा है, खाम सफरा का मतलब ये है कि इसका जायका चरपरा है, और गुद्दी उजलाती, जिसको हम गुद्दी उजलाती के कहते हैं, ये गर्म खुश्क है। और इसी तरह नमकीन जायका पुख्ता सफरा में खैज़ और विलादत, इसी में खैज़ और विलादत होते हैं। जब इन चीज़ों में, इन जायकों में, इन उम्र के लिहाज से हो, तो ये
बंदा सेहतमंद है, मतलब ये दूध बच्चे वाला हो, मतलब ये कि बच्चा दूध पीने वाला हो, तो ये मिजाज होगा। तो अगर ये मिजाज होते सेहतमंद है। इन चीज़ों में बीमारी कैसा पैदा हो जाता है? जब ये आगे की तरफ जाते हैं या पीछे की तरफ रह जाते हैं, तो इनमें वो मिजाज बिगड़ जाता है। जब मिजाज बिगड़ जाता है तो फिर क्या होता है? फिर ये बीमार हो जाता है। हम नब्ज से देखते हैं कि इसका मिजाज कैसा बिगड़ गया, आगे ये आगे निकल गए हैं या पीछे रह गया है। इसी तरह आम अलामत है, मसलन बुखार में आम अलामत है। तो अगर आप नब्ज के साथ साथ ये भी देखते हैं कि अगर सर गर्म हो तो आसाबी है, अगर सर गर्म ना हो, सर को छोड़ दे, पैर सर्द हो तो फिर उजलाती है, अगर पैर गर्म हो तो फिर गुद्दी है। तो इसके लिए उजलाती कावा आसाबी के लिए, गुद्दी कावा उजलाती के लिए, आसाबी कावा गुद्दी के लिए। उजलाती कावे में कोई और चीज़ नहीं है, दालचीनी और लौंग है। गुद्दी कावे में जवान, पुदीना, सौंठ है। आसाबी कावा में जीरा, इलायची, गुल सुर्ख है। इसी तरह ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर एक नीचे का है, एक ऊपर का है। तो नीचे से जब खून ऊपर जाता है, जिस्म से दिल को जाता है, तो इसको कहते हैं गुद्दी, क्योंकि जिगर से जाता है। और जब ऊपर से नीचे आता है जिस्म में, वो उसमें तेजी हो तो वो उसको सिस्टोलिक कहते हैं, जो दिल से जिस्म तक उजलाती, दिल से जिस्म तक उजलाती है, और जो जिस्म से दिल तक वो गुद्दी है। तो इन दोनों में आप ये कावे अगर समझ जाता है तो उजलाती के लिए आप गुद्दी कावा दे दे, गुद्दी के लिए आप आसाबी कावा दे दे। और आसाबी में दोनों ब्लड प्रेशर कम होते हैं, सिस्टोलिक भी और डिस्टोलिक भी। इसी तरह टांसर की अलामत है। टांसर ये मैंने अलामत इसलिए लिखा है कि नब्ज के साथ साथ आपको ये रहनुमाई भी मिलेगी आपको। तो गले का फूलना, जब फूल जाता है दर्द नहीं होता है, तस्कीन के साथ है, गुद्दी में तस्कीन है। टांसर में गले के दर्द होता है, सुर्खी होता है, तो ये गुद्दी तारीख है। और रतूबत का ज्यादा हो जाना, मतलब बार बार वो बलगम आता है, तूकता है, रेशा होता है, तो वो रतूबत की ज्यादती होती है। इसी तरह अक्सर दर्द जिस्म का है तो उजलाती होता है। जब बेचैनी और जलन हो, दर्द के साथ भी हो, तो बेचैनी और जलन ये गुद्दी है। और सुस्ती हो तो सुस्ती आसाब में होता है। यह हमारा एक बुनियादी लिटरेचर है, और जो हमने यहाँ पर एक टेबल के ज़रिए से आपको इस सामने मुखातिब हूँ, इससे इस्तेफ़ादा लें और लोगों की खिदमत करें। वाहिर दावाना।